Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your social science teacher. And today we are going to do history. Right. Chapter 1. This is your book, Chapter 1 and Nationalism in Europe. We have done only one question and 9 terms. Right. Now we will read further. Page number 4 pe aao beta. This chapter will deal, last paragraph. Show me thumbs up if you get it. Chalo, thank you very much. Thank you. Thank you, Abhishek. Thank you, beta. Now we are going to start. हाँ जी, Joy, unmute yourself, beta. हाँ जी, start reading. This chapter will deal. Second paragraph. This chapter will deal. Joy, unmute करो पहले बेटा. Joy, unmute yourself, बेटा. नहीं कर पा रही है. Nupur, unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Nupur पढ़ो बेटा. This chapter will deal with many of the issues. Yes, Joy. Can I read now? Okay. Can I read now? Okay, बेटा, read. Nupur, wait बेटा. There was a connection problem. कोई बात नहीं. पढ़ो बेटा, पढ़ो. हाँ जी. This chapter will deal with many of the issues visualized by Soro in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation-state in place of a multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices... Just wait. Now she has read very important line. This chapter will deal with the issues visualized by Frederick Suro in his painting. But this chapter and 19th century nationalism emerged as a force that brought many of the changes. ऐसे कुछ changes ला देंगे पूरी की पूरी political and economic condition में कि पूरा का पूरा यूरोप ही change हो जाएगा. And the multi-dimensional or dynastic states will take place. They will take place as nation state. अब working और free का rule नहीं रहेगा यूरोप में आप पढ़ोगे. And there will be only and only parliament form of government and nation state जैसा आज हमारा इंडिया है. एक national country बन जाएगा. Now there will be no rule of monarchy or king or queen or any kind of dynastic or emperor. चलो Joy, continue बेटा. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from the time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. Yes. Other, please mute yourself. Yes. अभी इसमें पढ़ा कि emergence of nation state. अब beginning हो रही है, nation state शुरू होने वाला है. And sense of common identity and shared history and descent. इससे पहले ऐसा नहीं था. कोई किसी की हिस्ट्री शेयर नहीं करता था, किसी को किसी पर प्राउड नहीं था, कोई कॉमननेस नहीं थी. All of the people were following the rule of king and queen. But now allegories आ गई, emblem आ गए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गई, डिफरेंट सॉन्ग्स आ गए, हिम्स आ गए, मार्टिस को याद किया गया. So these things were related to each of them. This is called nation state. अब Joy ने एक लाइन पढ़ी है बट वाली, बिल्कुल बीच में है बट वाली. A nation state, but word छोड़ो, बाकी हाईलाइट करो if you are having highlight everything or underline.
A nation state is one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. उसको नेशन स्टेट बोलते हैं, जहां पर सारे के सारे कंट्रीज के लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एंड वी शेयर ईच अदर्स फूड, वी शेयर ईच अदर्स फेस्टिवल, वी शेयर ईच अदर्स ड्रेस, ज्वेलरी, ऑल द हैबिट्स। हम सबकी हिस्ट्री सेम है। ऑल ओवर इंडिया सभी महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनते हैं। ऑल ओवर इंडिया वी फॉलो ओनली वन नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन। ऑल ओवर इंडिया वी फॉलो वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन प्राइम मिनिस्टर ओनली। और हमारे जो शहीद हैं, मार्टिर्स हैं, वो मेरे या आपके नहीं है, ऑल ओवर इंडिया सबके हैं। दिस इज कॉल्ड नेशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड हिस्ट्री एंड कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, राइट। सो ये क्वेश्चन कॉपी पे नहीं लिखेंगे, शॉर्ट आंसर है, डायरेक्टली वी विल लर्न फ्रॉम हियर। अरहाम, हर्ष, दीक्षित, तेजेश्वर, वीडियो ऑन, otherwise you will not enjoy the rest of the lesson. Now the French Revolution and the idea of nation. Open this page. Take a pen in your hand. Yes, Arham. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Arham, video. मैम एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था मैम, 5 मिनट तक वीडियो ऑन कर लूं? तो फिर बेटा ऐसे नहीं ना, वीडियो के बिना। चलो नेक्स्ट बेटा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब थोड़ा सा लिटिल वी आर मूविंग टू ग्रेड 9। ग्रेड 9 में फ्रांस घूमे थे ना हम लोग। हाँ, फ्रांस में हम बहुत लोगों से मिले थे और सबसे क्रूअल था लुई 16, है ना, बड़ा खराब था वो राजा। 3 स्टेट्स में लोगों को बांट के रखा हुआ था, क्लर्जी, नोबल और फिर उसके बाद 3rd स्टेट बेचारे पीसेंट्स। और जो टैक्स दे सकते थे उनसे टैक्स लेते नहीं थे, जो नहीं दे सकते थे उनसे जबरदस्ती से टैक्स लेते थे, है ना। अच्छा, 3rd स्टेट पीपल थे ना, पुअर पीपल। यस, अच्छा, तो टैक्स कौन से लोग देते थे? Riva, unmute yourself. Which Ma'am, kind of, third estate, huh? third estate people were giving all the taxes. There was a burden of taxes on them, and first and second estate they were enjoying the privileges from birth. ठीक है, Means they were not giving any taxes. एक टर्म आई थी, स्तुति आप बताओ। स्तुति Ma'am, unmute। Yes, स्तुति unmute yourself. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। स्तुति, एक टर्म हमने पढ़ी थी ग्रेड 9 में फ्रांस में, एक्टिव सिटीजन। स्तुति वो कौन थे? Active citizens. चलो पास करते हैं। कनव मित्तल। Those who were like the male citizens who paid taxes. Yes, Like all the male citizens who paid taxes were active citizens, and the passive citizens were women and the ones who did not pay any tax. thank you very much, thank you, correct answer. हाँ जी रुद्रा, unmute बेटा। Ma'am, active citizens were those who were above the age of 21 and were male and pay taxes more than the 3 days of laborer's wage. कनव unmute। And yes, I agree with Rudra. The people who were above the age of 25 years and who can gain money for 3 wages of a worker. Fine, absolutely. ठीक है बेटा, ठीक है। नूपुर, want to say something? No, ma'am, I wanted to give the answer only that active citizens were the people who were above than 25 years. They paid taxes and they were given to right to vote as well. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा फ्रांस घूमेंगे, आज सिर्फ फ्रांस जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। फ्रांस घूमेंगे, वहीं जहां हम 9th में गए थे, आज वहीं चलेंगे और एक क्वेश्चन भी कॉपी पे लिखेंगे। बट ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 marks, राइट। रुद्रा, यू वांट टू से समथिंग? योर हैंड रेज्ड। ओके ओके, चलो आदर्श, आदर्श बेटा स्टार्ट रीडिंग। ध्यान से अच्छे से पढ़ना, और whenever there will be any full stop you have to stop that, because this is my habit that I clear each line to you.
आराम से एक ही क्वेश्चन करना है, आराम से पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो आदर्श पढ़ो बेटा, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। आदर्श अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा। ईशान पढ़ बेटा तू। ईशान, ईशान पढ़ो। अनम्यूट योरसेल्फ। ईशान नाउ ट्राई। नूपुर अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. अरे ये क्या, फिर ईशान तू क्यों नहीं अनम्यूट कर पा रहा बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा ईशान। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बेटा, स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। मैम कौन सा पैराग्राफ? बेटा फ्रॉम स्टार्टिंग, सी दिस पेज, सी और स्क्रीन पे देख। मैम 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, फिर बोलना। स्टार्टिंग। हाँ जी, स्टार्टिंग से द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। मैम दिस वन। यस, One नो minute. बेटा, फेडिक शुरू नहीं, तूने कुछ और पेज निकालना। मैम पेज नंबर बोल दो। पेज नंबर 5। पेज। यस मैम। या द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. यस, वेट France- वेट वेट, हर फुल स्टॉप के बाद तू रुकेगा, ये मेरी आदत है। ईच लाइन मस्ट बी क्लियर टू यू। Okay. अर्नब तू क्या लिख रहा है? अर्नब अनम्यूट करिए यार, तू क्या लिख रहा है? नहीं मैम, अंडरलाइन कर रहा था मेन पॉइंट। मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा नहीं करवाया अंडरलाइन, मैंने कुछ भी नहीं नहीं बोला। हम जो पहले करवाया था वो अच्छा, नेशनल स्टेट वाला ठीक है ठीक है। पॉइंट बोल। चलो मिस करती हूँ मैं अगर आप मेरी तरफ देखते नहीं हो तो, इसलिए मेरी नजर सब पे है, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनना। अभी ईशान ने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, बट उस लाइन में दम है। ईशान ने पढ़ा द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला एक्सप्रेशन, पहला आइडिया दुनिया को, यूरोप को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया 1789 में। अदरवाइज किसी को पता ही नहीं था इंडिपेंडेंस क्या है, नेशनलिज्म क्या है, आजाद होना क्या है, खुद के राइट्स क्या है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बताया। हाँ जी ईशान, नेक्स्ट लाइन, हर फुल स्टॉप के बाद तुम्हें रुकना है। यस। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. यस, इसको मोनार्क नहीं पढ़ना, मोनार्क पढ़ना है, क पढ़ना है, Monarch. च नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रांस was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch, और monarch लुई 16 थे हमारे। फुल फ्लेज्ड मोनार्की थी वहां पर। और उसके बाद नेशनल असेंबली, पहले 3 स्टेट पीपल थे, फिर नेशनल असेंबली बनी, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पार्लियामेंट भी बनाई। 1789 की बात है, और हम तब काफी पीछे थे। साथ में इंडिया लेके चलो तो 1789 में हम बहुत पीछे थे। हमें बहुत देर बाद रेवोल्यूशन आई और बहुत देर बाद नेशनलिज्म का पता चला कि ये क्या चीज है। चलो हाँ जी ईशान, नेक्स्ट लाइन बेटा। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of सोवेनिटी का मीनिंग लिखो, इंडिपेंडेंस। जो आई लिखा बेटा, सोवेनिटी का मीनिंग इंडिपेंडेंस। ओके, गुड गुड। चलो ईशान। from the monarchy to a body of French citizens. बेटा हाईलाइट दिस लाइन, फुल लाइन। Yeah. कुछ खास है ये लाइन, क्या खास है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। The political and constitutional change that came in wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to body of French people.
अब इतना बड़ा चेंज आया वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कि सारी की सारी सोवेनिटी इंडिपेंडेंस ट्रांसफर हो गई, जो राजा के पास थी उठा के ग्रुप ऑफ पीपल के पास चली गई। नाउ पावर टू पीपल, काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ा चेंज आया था पॉलिटिकल एरिना इन फ्रांस, और फ्रांस की नकल मारी बाकी सब ने। दिस लाइन इज हाईलाइटेड। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, चलो ईशान आगे बढ़ बेटा। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty. हाँ, डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब इसकी Destiny. किस्मत। अब लगता था कि और कोई नहीं, सिर्फ पीपल है जो फ्रांस की किस्मत लिखने वाले हैं, सिर्फ पीपल है जो अपने अपने कंट्रीज की किस्मत लिखने वाली है। राजा रानी कुछ नहीं कर सकते, खाली अपना वो शाही झंडा होता है उनका, और वो अपने ही उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पीपल गॉट टू नो दैट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ओनली। चलो वंशिका अनम्यूट कर बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम डेस्टिनी क्या होता है? किस्मत, फेट। वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, स्टार्ट रीडिंग from the very beginning. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. हाँ जी, stop Among बेटा, the stop. Now see, wait, now I'm telling you, I'm using board. अब ध्यान से सुनना, each line is very important. Now see, I'm telling you some of the important things. ग्रेड 12 का लिखा है, इसको रख करते हैं। अभी वंशिका ने लाइन पढ़ी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, राइट? दिस इज वेरी पावरफुल लाइन, मींस ऑल द समरी सम अप करा हुआ इस लाइन में सारे के सारे टॉपिक को। अब इसमें एक लाइन पढ़ी है वंशिका ने, दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने मेजर्स इंट्रोड्यूस करे एंड प्रैक्टिस दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कुछ ऐसे आइडियाज इंट्रोड्यूस करे, ये क्या, अभी किसी ने कुछ नहीं लिखना, डोंट नोट डाउन ऑन योर कॉपी जब तक मैं नहीं कहती, ठीक है? अभी सबसे पहले था फ्रेंच पीपल। आई एम यूजिंग दिस वन मार्कर, दिस इज नॉट द गुड वन, इट should not be visible to you. Now French people introduced some of the measures. Now क्या measures? You will not write anything on your copy, अभी किसी ने कुछ नहीं लिखना। अब इन्होंने सबसे पहले ऐसा वाला measure इंट्रोड्यूस किया, ऐसा वाला कुछ आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करी जो सब फ्रांस पीपल की है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। नॉट अब आप यू वियर आइडेंटिटी कार्ड ना, आइडेंटिटी कार्ड सिर्फ आपका है, वो किसी और का नहीं है। इट नेवर बिलोंग्स टू अदर। अगर कोई छीन भी ले, कोई चुरा भी ले, तो उससे किसी काम का नहीं है, बिकॉज दिस इज योर पर्सनल आईडी कार्ड, है ना? तो यहाँ पर कॉमन आइडेंटिटी, कुछ चीजें ऐसी रख दी गई जो कॉमन आइडेंटिटी सारे फ्रांस की थी। अब मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो मेरे बताए बिना कि विच कुड बी द कॉमन आइडेंटिटी फॉर ऑल द पीपल? रेज योर हैंड्स, मेरे बताए बिना। हाँ बिल्कुल, बता तो जरा, कॉमन चीज क्या? हाँ मैम, ट्राई कलर फ्लैग उनका, which was blue, white and red. वेरी गुड, देयर फ्लैग। और किसका हैंड रेज है? जॉय। वंशिका, वंशिका यू प्लीज टेल मी। वंशिका Ma'am, my answer. हाँ Ma'am, same answer. Same answer. सेम आंसर। जॉय, नेक्स्ट कोई और चीज जो कॉमन चीज थी सबके लिए? Ma'am, I was going to say nationality and that they're French. फ्रेंच क्या? Their nationality. नेशनैलिटी में क्या चीजें? नेशनैलिटी की बात हो रही है ना, सारी कॉमन चीजें। जैसे उसने एक चीज बताई फ्लैग, जो फ्लैग बनाया फ्रांस में वो किसी एक का नहीं, वो सबका होगा। और बता, और नेशनैलिटी के लिए क्या चीज हो सकती है जो I'm सबकी thinking. common हो? हाँ I'm thinking.
ओके, वंशिका। मैम कॉमन लैंग्वेज। यस, लैंग्वेज कह सकते हैं हम लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट, तेजल। तेजल, यू प्लीज टेल मी। मैम देयर नेशनल एंथम। वेरी गुड, देयर नेशनल एंथम। ये वो चीजें थी जो सारे फ्रांस पीपल की थी बेटा, उन्होंने ये मेजर्स इंट्रोड्यूस करे। अब कोई शाही झंडा नहीं है, अब सिर्फ एक ही तरह के कॉइन नहीं है राजा की फोटो वाले, अभी दो काइंड्स ऑफ थिंग इंट्रोड्यूस्ड। हाँ जी तेजल। तेजल बोल बेटा। ओके, अवलीन बोलो बेटा। मैम राइट्स। हाँ, राइट्स। राइट्स। राइट्स, चलो ठीक है, पर वो आइडियाज हो जाएंगे ना, कोई नए नए आइडियाज होंगे तो हम आइडियाज लिखेंगे। और एक चीज और बताओ, कैमरा नीचे करो सो दैट आपको दिख जाए। और बताओ तो जरा कोई और चीज, अरे सबसे बड़ी चीज तो रही गई है। सारा बता सकती है? और whatever the things left to put in this box, collective identity की बात हो रही है। अवलीन, can you tell me? Maybe their duties towards their country. वो नहीं, वो आइडियाज भी आ जाएंगे। लुपुर। Ma'am, I have two, which is first is national currency and second the national assembly. नहीं नहीं नहीं, वो तो चलो उनकी पर्सनल बात थी ना, वो तो उनकी पर्सनल बात थी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कॉमन आइडेंटिटीज, कौन से मेजर थे, यहाँ मैं लिख ही देती हूँ। कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिवनेस, मतलब कि वो चीजें सिर्फ फ्रांस की अपनी नहीं, मतलब कह लो कि बाकी जगह भी। रुद्रा, रुद्रा अनम्यूट कर, मुझे आप ही के मुंह से सुनना है, तो क्वेश्चन इजी लगेगा। मैम दैट Marseilles, that their national song Marseilles. हो गया, Marseille. नेशनल सॉन्ग तो हो गया, एंथम लिख दिया मैंने। मुझे नहीं बताना, आप बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा। वंशिका बता सकती है और क्या चीज थी सबसे बड़ी चीज, उन्होंने क्या शो? हाँ, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस थ्रू थ्रू रेवोल्यूशन। क्या चीज दिखाकर, क्या था, आइडेंटिटी क्या थी? अर्नव अनम्यूट करी तो जरा, देखिए तो जरा बता पाएगा। Ma'am, I think that single administrative system, like equality. अरे नहीं, आप बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चले गए, रुक जाओ अब बस। अब मैं बताती हूँ, मैं देखो इसी पे ही चलता जाएगा आज पूरा दिन। नाउ सी कॉमन आइडेंटिटी, ये बिल्कुल आपने मेरे को ठीक बताया। फ्लैग बनेगा, कॉमन फ्लैग होगा, शाही झंडा नहीं होगा। लैंग्वेज एक ही होगी पूरे फ्रांस में, फ्रेंच होगी सिर्फ, और कोई लैंग्वेज नहीं होगी। एंथम उनका एक ही होगा, मुझे नहीं पता उन फ्रांस की लैंग्वेज में कुछ डिफिकल्ट सा है, ला टेला करके कुछ ऐसे है, एक ही पूरे फ्रांस में होगा। देन आइडियाज, ला पार्टी ला सिटियन, फ्रेंच के वर्ड्स हैं, फादरलैंड और सिटीजन, यही सब जगह होगा। एक चीज जो आप मुझे नहीं बता पा रहे थे, जॉय बता पाएगी। जॉय अनम्यूट कर, अच्छा लगेगा मुझे अगर Ma'am, is it about the history or culture? हाँ चलो कल्चर भी, और कल्चर तो चलो सब History or culture? Is this about the history or culture? ठीक है, कल्चर। और रुद्रा बता पाएगा? अच्छी क्लास है ये मेरी। मैम मोनार्की गवर्नमेंट। मोनार्की तो खत्म कर देंगे ये लोग, चलो फिर मैं ही बता देती हूँ। मैं बेटा एलिगरी, कैसे भूल गए आप? अब एक एलिगरी बनेगी, फीमेल फिगर बनेगा जो सिर्फ फ्रांस के एक लोग का नहीं, वो सबका होगा। और वो एलिगरी कौन सी थी, आपने फोटो में देखी थी? विच वाज द एलिगरी? हाँ तेजल। Marianne. हाँ हाँ मैरिन थी, यस मैरियन थी। और जर्मनी की कौन सी थी, कोई बता सकता है मुझे? Germania. जर्मनी की जर्मेनिया, ठीक है, फ्रांस की मैरिन, और हमारे इंडिया की भारत माता। आपने फोटो में देखा था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दैट वाज अ फीमेल फिगर,
सच में ऐसी कोई फीमेल थी नहीं, ना ही उसको ढूंढने बैठना, कोई मैरन नाम की लड़की नहीं है, कोई जर्मेनिया नाम की लड़की नहीं है। ये सिर्फ आइडिया था कलेक्टिव बिलोंगिंग का, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि एक चीज, सिंगल थिंग इज बिलोंगिंग टू ऑल द पीपल। सो दिस इज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये ध्यान में रखना अपने, क्योंकि सेम थिंग आई विल टीच यू इन चैप्टर 2 इंडिया। बात समझ आई? और तब मैं फिर आपसे पूछूंगी कि बेटा मैंने फ्रांस में आपको पढ़ाई थी ये चीज, देन टेल मी। और ये सारे बच्चों का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और फिर मैं याद रखूंगी, ठीक है? कि इन बच्चों ने ये मेरी क्लास डन, इन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड करी थी, एंड दे शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिगरी एंड द नेशंस, द आइडियाज ऑफ नेशंस। ठीक है, चलो तेजेश्वर अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा, स्टार्ट रीडिंग फर्दर, आगे पढ़ो बेटा, क्लासेस से छोड़ा। The ideas of Le Patre, the fatherland, and Les Citoyens, the citizen, emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. Yes, this is the next thing they have made. They have made their constitution. अब सारे फ्रांस का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा और आइडिया सारे फादर समझेंगे, एक दूसरे को सारे ब्रदर समझेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट आइडिया। नाउ वंश, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा रीड फर्दर। अ फ्रेंच फ्लैग, अरे लिखा तो हुआ था, यहीं से बता देते है ना। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. ठीक है, चलो आगे। Then full stop रुकना है। आगे पढ़ते जाओ। The Estates Journal was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and march. Yes, continue. हाँ बेटा, सुन रहे हैं हम। चलो अमन, अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव से पढ़ो। A centralized administrative system was put in place and it is formulated uniform laws for all citizens within its territory. तो यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया था, अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर एक ही तरह का सिस्टम होगा। यूनिफॉर्म पहनते हो ना एक जैसी, तो एक जैसा सिस्टम पूरे फ्रांस में बनाया गया। हाँ जी, फर्दर अमन। चलो अमन पढ़ो आगे। Internal customs, duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Continue. Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. Regional dialect का मीनिंग लिखो लैंग्वेज। अब रीजनल डायलेक्ट नहीं चलेगी, लोकल लैंग्वेज नहीं चलेगी, पूरे फ्रांस की सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी, वो है फ्रेंच। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस वर डन इन फ्रांस, और फ्रांस में ये चेंज होकर बाकी कंट्रीज ने भी इसको कॉपी करा। दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बस टिक मार्क कर लो, यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ जी जॉय, वांट टू से समथिंग बेटा? Ma'am, here they have mentioned that internal custom, duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. In the uniform system of weights and measures, they're talking about the livres which were abolished, their currency earlier. हाँ, actually what happened in France, number of type of currencies were there. 10 तरह की करेंसी थी। अब हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ 2 तरह की करेंसी है ना, एक पेपर नोट है और एक मेटल के कॉइन्स है।
है ना, बस तीसरी कोई करेंसी नहीं So है। there was तो वहां पर क्या था, कितनी सारी करेंसी थी, पीपल वर टोटली कंफ्यूज्ड कि ट्रेड करना है, अब कौन सी करेंसी है, अब इतने वाले नोट, 500 के नोट के, 1000 के नोट के, 5 रुपए का नोट के, 20 रुपए का नोट, है ना। तो कितनी सारी टाइप्स ऑफ करेंसीज थी। तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अब एक कॉमन नेशनल करेंसी हो गई, यूनिफॉर्म लॉज हो गए, सब जगह पर बराबर के लॉज चलेंगे, कॉमन नेशनल करेंसी हो गई, ठीक है। सो दीज वर द चेंजेस डन। हाँ बेटा, जस्ट जॉय। Ma'am, can you give example of which custom duties were abolished? अरे कई तरह Customs की and कस्टम ड्यूटीज थी, जैसे अब हम अमेरिका से जहाँ इंडिया आते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है ना। और समटाइम व्हाट हैपेंड, अब आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जॉय ने पूछा, तो समटाइम व्हाट हैपेंड एंड व्हेन वी आस्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्यूटीफुल डॉल फ्रॉम माय फादर, और जब वो लेके आई तो इतनी कस्टम ड्यूटी ही पड़ गई कि वो इतनी महंगी पड़ गई। तो फिर हमने पापा को बोला, इससे बड़ा तो हम इंडिया से खरीद लेते, इतनी महंगी पड़ गई है। तो कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा थी, बट उसके बाद ये कस्टम ड्यूटीज हटा ली गई। नाउ ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन वर free to do any kind of trade with any country. So business class was very happy with these kind of measures in France. Done बेटा? Thank you, ma'am. वंशिका तू इतनी खुश क्यों है? क्या हो गया? हाँ, मेजर्स तो हुए हैं फ्रांस में, तो फ्रांस के लोगों को खुश होना चाहिए। वंशिका गुप्ता ऐसे खुश हो जा रही है। चलो, नाउ वी हैव डन दिस। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आज, वाइंड अप कल करवा दूंगी मैं, वैसे क्वेश्चन यही तक है आपका। ओके, दिस क्वेश्चन वी विल राइट ऑन मंडे, ठीक है, टिक मार्क कर लो, मंडे को क्वेश्चन लिखेंगे और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। टाइम काफी ले लिया हमने, पर कोई बात नहीं, मेरा टारगेट था आज क्वेश्चन लिखवा दूंगी, बट नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्नब, क्लियर बेटा? थैंक यू बेटा। Now I am going to end up the class, but make sure that tomorrow is Sunday and you will revise whatever the pages we have done. 3, 4, 5 जितने पेजेस पढ़े हैं अच्छे से रिवाइज कर लेना। नो रिटर्न होमवर्क, कुछ लिखना कुछ नहीं है, लिखवाऊंगी मैं अपने सामने क्लास में, राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय।